तीर्थ यात्रा कर ले प्राणी, भव भव से तर जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तो तेरे ही काम आएगा। हर कण में और हर मन में भगवान सदा विराजे। तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू तेरे ही काम आएगा। उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, ऐसे हैं हमारे जैन तीर्थ स्थल। उन्हें कोटि कोटि वंदन। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म में उच्च कुल में हमें मनुष्य जीवन मिला है। यह हमारा सौभाग्य है, हमारा अहोभाग्य है। तारयति इति तीर्थ, जो भव सागर से पार उतारे वो तीर्थ कहलाता है। हमको संसार सागर से पार उतारने का मार्ग दिखाने के लिए तीर्थंकर परमात्मा तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ स्थान की पवित्र धरा के दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। श्री धोलेरा तीर्थ गुजरात के, जहां है 220 वर्ष प्राचीन आदिनाथ प्रभु की अलौकिक प्रतिमा जी, अत्यंत तेजोमय एवं सुंदर। इस तीर्थ दर्शन के लाभार्थी हैं स्वर्गीय सविताबेन पोपटलाल गांधी, स्वर्गीय कांताबेन कांतिलाल कापड़िया, स्वर्गीय ज्योति अरुण शाह और परिवार। हम हमारे लाभार्थियों से निवेदन करते हैं कि वे अपने विचार हमारे सबके साथ बांटें। 25માં તીર્થંકર એવા સકલ સંઘને મારા કોટી કોટી નમસ્કાર કરું છું। તીર્થ એટલે તારનાર એવા શ્રી ધોલેરા તીર્થને આજે ઉન્નત સ્તરે મૂકવા માટેની પ્રેરણા મને મળી, તે અમારા કુટુંબનું સૌભાગ્ય છે। મારું એક સ્વપ્ન આશરે 10 વર્ષ પહેલાં દરિયા કિનારે એક ગૃહમાં જર્જરિત ત્યાં પ્રભુજી બિરાજમાન હતા। તેમને મારે ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી શિખરબંધી દેરાસરમાં પધરાવવાના છે, એ સ્વપ્ન મને વારંવાર આવતું હતું। આ સ્વપ્ન મને શ્રી ગુરુ ભગવાનને મેં વાત કરી તો તેમણે મને જણાવ્યું કે વારંવાર સ્વપ્ન આવવાનું પાછળ કંઈક કારણ તો જરૂર હોઈ શકે, તો આ સ્વપ્ન તમારે વારંવાર યાદ કરવું। આ વાતને વર્ષો વીતી ગયા, ત્યાં અપૂર્વ અવસર મને મળ્યો કે હું શા માટે આ દરિયા કિનારે આવેલું આ દેરાસર અને સુંદર એવું મહાન તીર્થને બધાની સમક્ષ મૂકું તો કેટલું સારું છે, પણ આ દરિયા કિનારે આવેલ આ ધોલેરા તીર્થનો મહિમા તો હું બધાને જણાવું। આ વિચાર અમલમાં મૂકવા શ્રાવક શ્રી સુરેશભાઈનો અદ્વિતીય ફાળો તથા મારી દીકરી ચિરંજીવી રૂપલ, જમાઈ બિંદેશભાઈ, દીકરો પુરાવ અને પુત્રવધુ લક્ષ્મી પણ આ લાભમાં સહભાગી બન્યા। મારું મૂળ વતન ધોલેરા, પૂજ્ય મારા સાસુ માતા શ્રી કાંતાબેન પણ ધોલેરાના છે। પહેલેથી જ ધર્મના સંસ્કારે રંગાયેલા વડે મારી મા સવિતાબેન, જેને હું બહુ ઋણી છું, જે ધર્મિષ્ઠ અને હંમેશા સેવા પૂજા કરવાના નિયમવાળા પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રી પોપટભાઈ જેઠાલાલ ગાંધી, ગુરુ ભગવંતની વ્યવસ્થમાં સૌથી આગળ રહેનારા, ધર્મના બીજ તો વારસામાં જ રોપાયેલા। ઘર દેરાસર હતું અને રોજ નાત્ર પૂજા ભણાવવાનો નિયમ, અને આ જ કુટુંબમાંથી 2 દીકરીઓ સંયમના પંથે ચાલી નીકળી। ધોલેરા તીર્થની વાત કરું તો અતિ વિશાળ ઉપાશ્રય ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથો જ્યાં સંગ્રહાયેલા છે, તે તીર્થની સંભાળ પૂજ્ય પિતાશ્રી તથા પરિવારના સભ્યો અને ગ્રામ્યજનો બધાએ ખૂબ સરસ રીતે સંભાળ લીધી। હાલ નવી સુવિધાવાળું અને લોકગમ્ય અને સર્વને અનુકૂળ આવે તેવી સગવડતાવાળું સુંદર ગાર્ડન બનાવ્યું અને તીર્થનો જીર્ણોદ્ધાર ચાલુ કર્યો છે। હજુ પણ આ કામકાજ ચાલુ છે।
ચક્રેશ્વરી માતા અને દેવની અસીમ કૃપાથી આ તીર્થ ઉપર વરસી રહી છે. આ છે આપણું અતિ ભવ્ય તીર્થ ધોલેરા તીર્થ. આ તીર્થની વાત મૂકતા મારું હૈયું પણ મયુરની માફક થનગની ઉઠે છે અને નાચી ઉઠે છે. આપ સૌને ભેટવા જવાની પાલિતાણા જતાં પહેલાં આપણા આ ધોલેરા તીર્થના આદિનાથ દાદાને ભેટવા માટે અને કર્મોને નિર્જરા કરવા માટે આપ જરૂરથી પધારો. અને આ તીર્થનો મહિમા શું છે અને તારણહાર દાદાનો પ્રભાવ કેવો છે તે માણસો. જય आदिनाथ दादा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। तो चलिए, सकल संघ को निमंत्रण है कि हम कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और समग्र अमेरिका से चले भारत की धन्य धरा पर। तीर्थ यात्रा कर ले प्राणी, भव भव से तर जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तो तेरे ही काम आएगा। श्री आदिनाथाय नमः। सागर के किनारे पावन धौलेरा बसा है। आदिनाथ जी का धाम ये प्राचीन वास्तु सा है। दृष्टि गोचर बात अद्भुत इसकी महिमा बढ़ाए। गुजरात के भाल प्रदेश में सागर किनारे अवस्थित यह प्राचीन तीर्थ आज नए रूप में उन्नत और भव्य शिखरों से शोभित है। आइए प्राचीन तीर्थ धौलेरा के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी लें। धौलेरा के प्राचीन खंडहर देखकर बुलंद इमारतों की याद ताजा होती है। सूक्ष्म कोरनी वाले लकड़े के मकान, विविध संप्रदायों के अनेक मंदिर, धर्मकुंड तालाब आदि इस नगर की प्राचीन समृद्धि की साक्षी देता है। धौलेरा नगर में पूर्व देश विदेश का बड़ा व्यापार था और उस समय व्यापारियों का लेन देन पैसे से नहीं किंतु चांदी के सिक्कों में वजन से होता था। जैन समाज में स्वामी वात्सल्य में पहिए वाली गाड़ी में शीरा परोसा जाता था। उसके प्रमाण स्वरूप आज भी संघ में बड़े बड़े बर्तन पाए जाते हैं। भारत देश की आजादी की लड़ाई में 1930 के नमक के सत्याग्रह में धौलेरा का आंगन भी भाग्यशाली बना था। यहां के गांधी चौक में श्री झवेरचंद मेघाणी ने शौर्य गीत प्रस्तुत किए थे। धौलेरा नाम कैसे हुआ, उसके पीछे भी प्राचीन समृद्धि का इतिहास बोलता है। धौलेरा और उनके आसपास के विस्तारों में उस समय कपास का विपुल मात्रा में उत्पादन होता था, जिससे नगर में प्रवेशते ही कपास के श्वेत पर्वत दिखाई पड़ते थे। यह श्वेत रंग और रुई दोनों को जोड़कर धोलारू नाम से अपभ्रंश होकर धोलेरू से धौलेरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कवि दलपत राम ने सही गाया है, धोलेरू तो रू भलू ने कहूं तो भला छे भालना। ऐसी ऐतिहासिक नगरी के आंगन में गर्वान्वित धौलेरा तीर्थ की आज जैन तीर्थों में शान बन चुकी है। धौलेरा तीर्थ के अस्तित्व की पृष्ठभूमिका में श्री शत्रुंजय तीर्थ कारण रूप है।
सभी श्रावक जानते हैं कि शत्रुंजय की 9 टुक में से मोतीशाह शेठ की टुक में भव्य जिनालय स्थित है। मोतीशाह शेठ के मुनीम श्री वीरचंद भाई शाह ने प्रेरित होकर अपने वतन धोलेरा में ऐसा सुंदर और भव्य जिनालय बंधवाने का भाव जताया। उनका प्रस्ताव धोलेरा संघ ने सहर्ष स्वीकार किया। धर्म के कार्य में विलंब किस बात का, नक्शे आयोजन होने लगे। मोतीशाह टुक का संपूर्ण आयोजन उन्होंने ही किया था। इसी कारण बहुत जल्दी शुभारंभ हुआ और थोड़े ही समय में भव्य जिनालय निर्मित हो गया। जल्दी दर्शन दो, पुण्य कमाना है, पाप को धोना है। धोरेला तीर्थ सुहाना है, यात्रा करके मुझे जीवन सफल बनाना है। यात्रा करके मुझे जीवन सफल बनाना है। आदेश्वर दादा करीब 210 साल प्राचीन 27 फीट ऊंचे शिखरबंद जिनालय में 27 इंच के श्वेत वर्ण के पद्मासनस्थ श्री आदिनाथ प्रभु विराजमान है, जिनकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1893 माघ शुक्ल दशमी बुधवार को आचार्य श्री देवेंद्र सूरी जी महाराज के हस्तक संपन्न हुई। इस प्राचीन प्रतिमा को देखते ही मन भाव विभोर हो जाता है। तेरी सेवा करनी है, तेरी पूजा करनी है, तेरी स्तवना करनी है, तेरी भक्ति करनी है। तेरी सेवा करनी है, तेरी पूजा करनी है, करनी है, तेरी भक्ति करनी है। भक्ति करके मुझको भवसागर तरना है। यात्रा करके मुझे जीवन सफल बनाना है। आदिश्वर दादा गर्भगृह में मूल नायक श्री आदिनाथ जी के बाईं ओर 26 इंच के श्वेत पद्मासनस्थ श्री अजितनाथ जी और दाहिनी ओर 25 इंच के श्वेत पद्मासनस्थ श्री महावीर स्वामी प्रतिष्ठित हैं। नमो जीर्णाणम। श्री महावीर स्वामी की बगल के गोख में श्री मुनि सुव्रत स्वामी और उनके ठीक सामने की दीवार के गोख में श्री अजितनाथ जी विराजित हैं। मूल नायक श्री ऋषभ देव जी के पबासण के पास श्री अनंतनाथ जी और श्री शांतिनाथ जी विराजित हैं। ऐसे ही श्री अजितनाथ प्रभु के पास श्री संभवनाथ व श्री अभिनंदन जी प्रतिष्ठित हैं। श्री महावीर स्वामी जी के पास श्री पार्श्वनाथ जी व श्री ऋषभ देव जी स्थापित हैं। बाजू के गोखलों में श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी के पास श्री श्रेयांसनाथ जी और ठीक सामने श्री अजितनाथ जी के पास अनंतनाथ जी व कुंथुनाथ जी प्रतिष्ठित हैं।
इस गर्भगृह में छोटी बड़ी अनेक संगमरमर की प्रतिमाएं और 6 पीतल की, 1 चांदी की सिद्ध चक्र आदि स्थापित हैं। दर्शन करके रंग मंडप में दर्शन करें। दाहिनी ओर से प्रथम श्री अजितनाथ जी, श्री मुनि सुव्रत जी को नमो जीर्णाणम। द्वार के बाद गोख में प्रतिष्ठित श्री अनंतनाथ जी व श्री चंद्र प्रभ जी को नमो जीर्णाणम। मुख्य द्वार के बाद आगे इस गोख में श्री संभवनाथ जी एवं श्री अभिनंदन स्वामी को नमो जीर्णाणम। आगे बढ़ते ही द्वार के बाद अंतिम 2 गोख में क्रमानुसार श्री महावीर स्वामी की 2 प्रतिमाओं को नमो जीर्णाणम। इस जिनालय में छोटी बड़ी कुल 24 प्रतिमाएं दर्शनीय है। रंग मंडप के घूमट में रंगीन कलामय पुतलियों का नजारा सुंदर दिखता है। जिनालय में प्रवेशते ही बाईं ओर श्री चक्रेश्वरी माता की देरी है। कहते हैं कि मां चक्रेश्वरी जो आदिनाथ प्रभु की अधिष्ठायक देवी हैं, वो चमत्कारी हैं। उपाश्रय में स्थित साधु साध्वियों ने कई बार रात को दिव्य ध्वनि वाजिंत्रों की आवाज सुनी है और एहसास भी किया है कि जैसे मां चक्रेश्वरी गरबे गा रही हो। पंचम काल का यह आश्चर्य है। जिनालय के प्रवेश के दाहिनी ओर श्री गोमुख यक्ष देव छोटी सी देहरी में स्थापित हैं। वंदन करके आइए चलें चौमुख जी के मंदिर में, जो जिनालय के परिसर में थोड़ी सीढ़ियां चढ़ने से दर्शनीय है। पूर्व यह जगह जर्जरित हो जाने के कारण इसको संवत 2032 में नया बनाया गया। यहां कई मूर्तियां थी जो मुख्य जिनालय के रंग मंडप में स्थापित की गई और यहां 4 मूर्ति को चौमुख जी में प्रतिष्ठित किया गया। मूल नायक श्री मल्लीनाथ जी, बाईं ओर से श्री सुमतिनाथ जी, मूल नायक के पीछे श्री चंद्र प्रभ जी और दाहिनी ओर श्री अभिनंदन जी विराजमान हैं। बोलो आदिनाथ नी जय, भोलेरा तीर्थ मंडन नी जय। बोलो आदिनाथ नी जय, भोलेरा तीर्थ मंडन नी जय। बोलो आदिनाथ नी जय, भोलेरा तीर्थ मंडन नी जय। बोलो आदिनाथ नी जय, भोलेरा तीर्थ मंडन नी जय। धोलेरा तीर्थ में करीब 150 साल से कुदरती दबाव से एक बड़ा गर्म पानी का स्रोत बह रहा है, जो धोलेरा की विशिष्ट पहचान बन रहा है। गांव पर गांव से लोग आते हैं और इस पानी से स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। यहां पानी की छोटी टंकी में बारिश का पानी भर जाता है। इसी पानी से प्रभु जी को प्रक्षाल किया जाता है। जिनालय के परिसर के ठीक पास एक खंड में यति की गादी स्थित है। पूर्व जिनालय दरबारगढ़ में था। वहां से लाकर यहां जिन मंदिर बनवाया गया था। यहां यति की गादी के निशान भी हैं। आइए इस यति के चरणों को वंदन करें। उसके ठीक आगे श्री माणिभद्र वीर का स्थानक है। पास में श्री घंटाकर्ण वीर का यंत्र स्थापित है। आगे श्री काल भैरव जी जिनालय निर्माण के समय से यहां स्थापित है।
यहाँ श्री सिद्धाचल जी का पट भी दर्शनीय है। अब चलते हैं जिनालय की बाहरी परिसर में, ठीक दाहिनी ओर, जहां 2 देरी स्थित हैं। श्रीमद आचार्य श्री बुद्धि सागर जी महाराज साहब की देरी में मत्थेण वंदामी। बाजू में श्री घंटाकर्ण महावीर देव की देहरी में प्रणाम करें। संवत 258 में गुजरात में जो भूकंप आया, उससे जिनालय के शिखर व अन्य स्थानों को भारी नुकसान हुआ। उस समय श्री वसंत भाई गांधी ने अनेक महात्माओं व लोगों की सहायता से धन एकत्रित करके इस जिनालय का जीर्णोद्धार करवाया था। यहां पुरानी पीढ़ी के पास सालों पुरानी देरी है, जिसमें श्री विजया शेठ और श्री विजया शेठानी की मूर्ति स्थापित है। शत्रुंजय तीर्थ जाने के लिए यात्रालु और साधु महात्मा यहां होकर जाते हैं, जिससे उनका 40 किलोमीटर का विहार कम हो जाता है। इसी कारण को ध्यान में रखते हुए यहां 125 साधु एवं 75 साध्वी जी स्थिरता कर सके, इतना बड़ा श्रावक उपाश्रय और श्राविका उपाश्रय का निर्माण करवाया गया है। कहते हैं कि कार्तिक सूद पूनम से आषाढ़ सूद 14 के अंतराल में करीब 1,500 से 2,000 साधु संत यहां से ही विहार करते हैं। हर संप्रदाय के साधु साध्वी भगवंतों की पूरे भाव से वयावच यहाँ की जाती है, जो धोलेरा तीर्थ का परम सौभाग्य है। यहाँ धर्मशाला, भाता की व्यवस्था, भोजन खंड, आयम्बिलशाला, उबला पानी का खंड, स्थिरतावास के आवास, नूतन व्यवस्था व सीसीटीवी कैमरा के साथ कार्यालय, कर्मचारी आवास आदि सभी सहूलियत उपलब्ध हैं। यहाँ के उद्यान में श्री मोती शाह शेठ की मूर्ति और आसपास मोती शाह शेठ की 8 प्रतिकृति का इतिहास भी मौजूद है। यहाँ के फूलों को प्रभु सेवा में उपयोग में लिया जाता है। साधु साध्वी जी या यात्रालुओं के साथ जो सेवक आते हैं, उनके लिए भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब भी तीर्थ पर कोई कष्ट आया, तब महात्माओं ने वात्सल्य सभर कृपा की है, जिसमें पूज्य आचार्य भगवंत विजय रामचंद्र सूरीश्वर जी का नाम अग्रसर है। आज के आधुनिक युग का परम आश्चर्य इस तीर्थ में दृष्टिगोचर होता है। प्रतिदिन शाम को आरती के समय एक मोर और एक ढेल का जोड़ा जिनालय के शिखर पर आकर बैठता है। जिनालय के त्रिशिखर से धीरे धीरे आगे बढ़कर ध्वजा दंड की सबसे ऊंचाई पर यह मोर बैठता है और सुबह की प्रक्षाल विधि संपन्न होने के बाद चला जाता है। सालों से यह क्रम जारी ही है। सर्दी, गर्मी या बारिश का तूफान हो, लेकिन यह मयूर महाराज शिखर की शोभा को बढ़ाने के लिए आ ही जाते हैं। आज लगभग 80-100 साल से यह घटना प्रतिदिन घटती है। इस मयूर की कई पीढ़ियां आ गई और चली गई, किंतु मयूर की तीर्थ भक्ति में कभी कोई रुकावट नहीं आई। हमें यह नजारा देखना है तो इस तीर्थ में रात को रुकना पड़ेगा, तभी हम अपनी आंखों से यह आश्चर्य के साक्षी बनेंगे। धोरेला मंडन ऋषभ जिनंद दयाड़ मरुदेवानंदन वंदन करु तृणकाड़ ए तीर्थ न शिखर मोर करे टहुकार आदिनाथ जी तुझ भक्ति लाती अपार। बोलो श्री आदिनाथ प्रभु की जय, बोलो श्री धोलेरा तीर्थ की जय। हर कण में और हर मन में भगवान सदा विराजे। तीर्थ
तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू, तेरे ही काम आएगा। तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू, तेरे ही